اسٹیج کے زیب و زینت بنے، اللہ پاک ان کی عزتوں کو دوام عطا فرمائے، اللہ پاک انہیں دنیا آخرت میں بھلائی نصیب فرمائے۔ عالم و سالم مرحبا، ذرا بلند آواز بولیے سبحان اللہ۔ اللہ دے بندے خدا دے گھر وچ بیٹھے وے کتنی اللہ دا نام بلاندے آپ ہونی پڑھے شوق نال پڑھی محبت نال کیا اعلان کرنے پہ بڑا ذوق کرنا پائے، لیکن آپ کو پتہ چلے آپ کتنی سفر کر کے آئے۔ اللہ دا نام بلاندے تھوڑی آواز بلند ہوئے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، حضرت علامہ مولانا سید امیر محمد بھوری صاحب۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سامعین محترم، آپ سبحان اللہ اونچا بولیں یا نہ بولیں، آپ نعرہ لگائیں یا نہ لگائیں، لیکن جو بات میں پیش کر رہا ہوں آپ اس کو دل دماغ میں ضرور بٹھائیں تاکہ گفتگو کا مقصد پورا ہو جائے اور میرا مضمون ضائع نہ چلا جائے۔ ذرا اونچا بولیے سبحان اللہ۔ میں گزارش کر رہا تھا کہ یہ ذلیل قومیں تھیں، یہ جاہل لوگ تھے۔ دنیا بھر کے اندر مسلمانوں کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں اور تین تین چار چار بر اعظموں پر مسلمانوں کی سلطنت اور حکومت، تو یہ یہود و نصارہ پٹ رہے تھے، جاہل لوگ تھے، کوئی ان کے پاس نظام نہیں تھا، بس قتل و غارت، ظلم و بربریت اور جہالت کے سوا۔ پھر ان کے کچھ دانشور بیٹھے اور انہوں نے کہا ہم کب تک ذلیل ہوتے رہیں گے، ہمیں کچھ ترقی کی طرف آنا چاہیے۔ کہا ترقی کیسے ہوگی؟ کہا ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں، ہم چوری کر لیتے ہیں۔ کہا کہاں سے چوری کریں گے؟ کہا دیکھتے نہیں ہو عرب کی دنیا کے اندر ایک ہستی جلوہ گر ہوئی اور اس نے کچھ ایسی تعلیم دی ہے، ایسی تربیت دی ہے کہ وہ عرب کے لوگ پوری کائنات پہ حکمرانی کرنے والے بن گئے اور ساری کائنات پہ راج کرنے والے بن گئے۔ اس کی تعلیم چوری کرو۔ اس نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قوم کو کیا سکھایا ہے، کیا تعلیم دی ہے؟ آپ نظریں تشریف فرمائے، واپس لائیں نظریں۔ میں پھر اپنی بات ایک سے شروع کرتا ہوں، بات ضائع ہو جائے پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، لہذا میں نے کہاں سے لیا کہاں تک آیا ساری گئی، آپ پھر شروع کرتا ہوں، آپ پھر سبحان اللہ پڑھیں۔ میں نے عرض کیا کہ یہود و نصارہ جو آج اپنے آپ کو ترقی یافتہ، ہم جن لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جن کے سودی قرضوں تلے ہم ذلیل ہو رہے ہیں، ہم رسوا ہو رہے ہیں، جو پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو ذلیل و رسوا کر رہے ہیں، یہ ذلیل اور جاہل قومیں تھیں، در بدر تھے۔ ان کے ہاں پڑھائی کرنا، تعلیم حاصل کرنا یہ جرم سمجھا جاتا تھا، ان کے ہاں نہانا اور کپڑے بدلنا یہ جرم سمجھا جاتا تھا، جہالت کی انتہا پر تھے۔ پھر کچھ دانشور مل بیٹھے اور کہا ہمیں ترقی کرنی چاہیے، ہم کیسے ترقی کر سکتے ہیں؟ کہا ہمیں چوری کرنی پڑے گی۔ کہا چوری کیسی؟ کہا کسی کی تہذیب چوری کرو۔ کس کی؟ کہا ایک شخص عرب کی دنیا میں آیا تھا جس نے جاہلیت کے دور کے اندر ایسی تعلیم دی ہے، کائنات کی کایا پلٹ کے رکھ دی ہے اور چرواہوں کو کائنات کا حکمران بنا دیا ہے اور دنیا پہ راج کرنے کے انداز سکھا دیے ہیں، لہذا ان کی تعلیم کو چوری کرو۔ کہا ان کی تعلیم میں دو چیزیں ہیں، ایک ایمان ہے اور ایک تربیت ہے۔ کہا ایمان تو ہم لائیں گے نہیں، ہٹ دھرند تھے، ایمان تو لائیں گے نہیں، لیکن ان کی جو تربیت ہے، جو ان کی تعلیم ہے، جو انداز ہے، اٹھاؤ اور اس کو اپنے اوپر لاگو کرو، اس کو فالو کرو، آپ بھی کائنات میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، انہوں نے سنت محمدی کو چرایا ہے، سیرت محمدی کا مطالعہ کیا ہے، انہوں نے پڑھا کہ نبی پاک علیہ السلام انصاف پسند تھے، یہ انصاف پسند بن بیٹھے۔ آقا پاک علیہ السلام سادہ مزاج تھے، انہوں نے سادگی کو اختیار کیا۔ میرے آقا پاک با اخلاق تھے، انہوں نے اخلاق کو اختیار کیا۔ میرے آقا پاک غریب پرور تھے، میرے آقا پاک ہر چھوٹے بڑے کے حقوق کا خیال رکھنے والے تھے، میرے آقا پاک ہمیشہ سچ بولنے والے تھے، میرے آقا پاک علیہ السلام ناپ تول کے اندر کمی کرنے کو ناپسند کرنے والے تھے۔ میرے آقا کی تعلیم یہ لوگ پڑھتے گئے، فالو کرتے گئے، اپناتے گئے۔ گری ہوئی قوم تھی، یہ جہالت کے گڑوں اور
कीचड़ में लिथड़ी हुई कौन थी, आज दुनिया पे राज कर रहा है। अमेरिका राज कर रहा है, जापान राज कर रहा है, आज इंग्लैंड, आज उन लोगों ने हमें घुटनों तले दाबा हुआ है। तो लोगों जरा एहसास तो करो, हम जलील क्यों हुए, हम रुस्वा क्यों हुए। दरसे कुरान हमने न भुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता। हमने सुन्नत को छोड़ा है, हमने कुरान की तालीम को छोड़ा है, हमने आका पाक की पैरवी को छोड़ा है। मुसलमान मुल्कों के अंदर अदल नहीं है, इंसाफ नहीं है। मुसलमान मुल्कों के अंदर अच्छाई नहीं है, सच्चाई नहीं है। मुसलमान मुल्कों के अंदर, मुसलमान अफराद के अंदर आज धोखा है, फराड है, हक तलफी है। भाई का हक खाओ, बहन का हक मारो, बेटी का हक खा जाओ, औलाद का हक खा जाओ। बेटे को हक दो, बेटी को हक ना दो। बहन का हक भाई मार रहे हैं, भाई भाई का गला काट रहा है। जहां दो नंबरी है, जहां फराड है, जहां हर तरफ माशरे के अंदर बिगाड़ है। मेरे भाइयों, हम कहते हैं एक बला हमारे सर से उतरती है, कुर्सी की जान छोड़ती है, दूसरी बला उससे बड़ी नाजिल हो जाती है। वजह क्या है? हम तो चाहते हैं कि कोई मोहम्मद बिन कासिम जैसा हुक्मरान आ जाए, कोई सलाहुद्दीन अयूबी जैसा आ जाए, कोई जो है आका पाक के गुलामों में से आ जाए। नहीं मेरे भाइयों, आमालुकुम उम्मालुकुम, मेरे आका नबी पाक अलैहिस्सलाम की ये तालीम है। तुम्हारे जैसे अमाल होंगे, तुम्हारे वैसे हुक्मरान होंगे। हमारे अमाल इतने गिरे हुए हैं और हम कहते हैं कि कोई हमें आदिल हुक्मरान मिल जाए, कोई हमें अच्छा हुक्मरान मिल जाए, कोई हमें बेहतर हुक्मरान मिल जाए, कोई हमें खुदा तरस हुक्मरान मिल जाए। और भाई तकरीर करो दे अल्लाह दा नाम पे मेदा भी है, मैं गल बनाना बात विच आके खत मार रहे हो। खुदा दा नाम ने मुकाउन दो दी को लेट पे दी है तो सान विच पानी दी कर बलाए जुए बैठे पानी रख के रखी 18 बोतलां दा भैया जरा ऊंचा को यार सुभान अल्लाह। अपना प्रोग्राम आप खराब करो ते लगे पैन, अल्लाह पाक हिदायत अता फरमावे। सामीन मोहतरम जरा गौर करना, मैं अर्ज क्या कर रहा था, मैं अर्ज ये कर रहा था कि आज हमने हुजूर की सुन्नत को छोड़ दिया है, तरीके को छोड़ दिया है, तभी तो हम दरबदर हो चुके हैं। जिल्लत और रुसवाई का तौक हमारी गर्दन में डल चुका है। आओ सुनो, हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु जब मुआहदा हो गया, यहूदियों ने कहा अगर तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन फलस्तीन आ जाए, हम बैतुल मक़दस का कब्जा उसके हवाले कर देंगे, वरना हम कले में छुपे रहेंगे और हमारे पास साल भर खाने का राशन मौजूद है। हम भूख की वजह से भी दरवाजे नहीं खोलेंगे क्योंकि हमारे पास बड़ा राशन मौजूद है। तुम थक जाओगे, हम नहीं थकेंगे। अगर तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन खुद चलकर यहाँ आए फलस्तीन, तो हम जेरूशलम उनके हवाले कर देंगे। हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु को खत लिखा गया, आपको मदीने से फलस्तीन आना होगा। आपने फरमाया अगर मेरे आने से ऐसा होता है, मैं आने के लिए तैयार हूं। आज हमारे बादशाह, आज हमारे वज़रा, आज अगर हमारा वजीर आजम, इस मकरूज मुल्क का वजीर आजम भी हज पे जाता है तो 100-100, 200 बंदों को साथ लेकर जाता है और करोड़ों अरबों रुपए खजाने से लुटा के ये हराम खोरों का हज होता है। लानत का तौक गले में डालकर ये वहां से वापस आते हैं। मेरे भाइयों, हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब जरा तवज्जो कीजिए, 23 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान हैं। अपनी जाती ऊँटनी ली, जाती अपना गुलाम साथ लिया, फरमाया हम जाएंगे, मेरी जाती ऊँटनी होगी, एक ऊँटनी और 2 अफराद, हम जाएंगे फलस्तीन। कहा हुजूर खादिम ले लो, फरमाया हमें खादमों की जरूरत नहीं है, आप खजाने से, आप जो है बैतुल माल से एक और सवारी ले लो। फरमाया हम मुसलमानों को बैतुल माल अपने लिए इस्तेमाल नहीं करने वाले, जाती ऊँटनी पर। फरमाया जब तुम थक जाओगे तो तुम सवार हो जाओगे, मैं लगाम थामूंगा, जब मैं थक जाऊंगा मैं सवार हो जाऊंगा और तुम लगाम थामोगे। ये चलते चलते फलस्तीन का सफर तय किया। आगे अमाए दीन इस्लाम मुसलमानों के बड़े बड़े लोग इंतजार में खड़े थे, उन्होंने इस्तकबाल किया। हुजूर आपके बाल मिट्टी में अट चुके हैं, आपका लिबास मट्टी, आटा मट्टी हो चुका है, आपके पास आपके 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 कुर्ते पर पैबंद लगे हुए हैं, टाकियां लगी हुई हैं और ये शाही लिबास है, ये पहन लें ताकि जब शाही लिबास के साथ आप वहां पर जाएं पता तो चले मुसलमानों का हुक्मरान आ रहा है। आपने फरमाया शाही लिबास अपने पास रखो और सुनो उमर बिन खत्ताब क्या कह रहा है। आप खड़े हुए मुसलमान को सामने बिठाया, फरमाया सुनो हम तो ऊंट चराने वाले लोग थे, हम चरवाहे थे, हम अरब के बद्दू थे और मुझे याद है कि बाबा हमें ऊंट चराने के लिए देता था, ऊंट काबू में नहीं होते थे तो हमें जो है वो
तलवार पड़ा करती थी। मुस्तफ़ा पाक अलैहिस्सलाम ने हमें ऐसी तालीम दी है, ऐसा दीन दिया है कि आज 25 लाख मुरब्बा मील पर परचम इस्लाम लहरा रहा है और उमर बिन खत्ताब को उसका हुक्मरान बना दिया है। आपके अल्फाज गौर से सुनने के काबिल हैं। आपने फरमाया, मुसलमानों तुम समझते हो हमें तीर और तलवार का फन आता है, इसलिए अल्लाह ने हमें इज्जत दी है। तुमने ये समझा है कि हमें कोई जंगे हमें कोई हर्ब का तरीका आता है, इसलिए हमें इज्जत मिली है। तुमने ये समझा है हम कोई जोरे बाजू रखने वाले हैं, इसलिए हमने इज्जत पाई है। अल्लाह की कसम है, हमें तीर और तलवार के फन या जोरे बाजू या अफरादी कुव्वत की वजह से इज्जत नहीं मिली है। अल्लाह ने जितनी इज्जत अता की है तालीम मुस्तफा की वजह से अता फरमाई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हादरी। वो हुजूर की तालीम है जिसने मुसलमानों को जमीन से उठाया और रश्क आसमां बना दिया। और आज हमारी जिल्लत, हमारी रुसवाई सबब क्या है? दर्स कुरान तुमने न भुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता। कौन है जो सच बोलने वाला है? कौन है जो 5 वक्त मस्जिद में सजदे करने वाला है? कौन सा मुसलमान है जो हर रोज उठकर कुरान की तिलावत करने वाला है? कौन है जो 2 नंबरी नहीं करता, सौदा 1 नंबर माल बेचता है? कौन है जो देने में झूठ की बात नहीं करता? कौन है जो वादा खिलाफी नहीं करता? कौन है जिसने बच्चों को दीनी तालीम दी है? कौन है जिसने माओ बहनों को पर्दा सिखाया है, उनके सरों पे हया की चादरें रखी हैं और उनको घरों से निकलते हुए पर्दे की तालीम दी है? कौन है जिसके घर के अंदर आज नंगा डांस नहीं हो रहा टेलीविजन की स्क्रीनों पे? कौन है जिसके बेटे और बेटियों के मोबाइल के अंदर हाथ के अंदर मोबाइल नहीं है और मोबाइल के अंदर दुनिया भर का गन जो है वो मौजूद नहीं है? बताओ कहां गया इस्लाम, कहां गई मुस्तफा पाक की तालीम? हम कहते हैं हमें इज्जत मिल जाए, हमें जुर्रत मिल जाए, हमें कायनात में नाम और शान और शौकत मिल जाए। एक बात अर्ज करने लगा हूं, अल्लाह करे बात आपकी समझ में आ जाए। मेरे भाइयों, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर डॉलर 300 को क्रॉस कर चुका है। हमारे 310, 15, 20 रुपए जाए तो $1 बनता है। हमारा पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान, उसको रूस ने भी जो है वो पींच के रख दिया है। वहां गोला बारूद के बादल बरसे हैं, लेकिन उन्होंने इस्लाम का नाम लेते हुए मुकाबला करते रहे। फिर क्या हुआ? फिर अमेरिका आया, अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी, दौड़ गया, वो फिर आया, उन्होंने वहां पर आग बरसाई है, बारूद बरसाया है। अरे दुनिया में आज तक इतना बारूद नहीं बरसाया गया। हिरोशिमा नागासाकी के अंदर भी इतना बारूद नहीं बरसाया गया जो जहां अफगानिस्तान के पहाड़ों में बरसाया गया है। लेकिन उन्होंने कहा एक ही है, कलमा है, ईमान है, इस्लाम है, यही बात करते रहे। आज ये पाकिस्तान जिसने कोई जंगे नहीं लड़ी हैं, जिस पे बारूद नहीं बरसे हैं, जहां पर लोगों ने कब्जा नहीं किया है, हमारा डॉलर 300 को क्रॉस कर रहा है और वो 72 रुपए में उनको डॉलर मिल रहा है, 70 रुपए में उनको डॉलर मिल रहा है। वजह क्या है? मेरा रब बताना चाहता है, लोगों क़यामत तक तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी शौकत, तुम्हारी इस्मत इस्लाम की वजह से है। जब तक इस्लाम का नाम लेते रहोगे, रब तुम्हें झुकने नहीं